बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Should we start the class? सही है। अच्छा जी, क्या हालात हैं? रोज़े कैसे जा रहा है आपके? ईद की तैयारी वगैरह हो गई है या अभी जारी? एनाटमी की टेंशन है? एनाटमी तो मैं पहले ही बता चुका हूँ और बार बार मैं बताता हूँ कि एनाटमी वो वाहिद सब्जेक्ट है जिस पे जिसके लिए वो नकल की जो मवाद चाहिए होती है वो आप अपने साथ एग्जामिनेशन हाल ले जाते हैं। एक ये इसकी खासियत है। दूसरी ये कि एक के साथ एक फ्री है, ठीक है, राइट साइड के साथ लेफ्ट साइड फ्री है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जितने मुसलमान हैं, जितने भी इंसान हैं, तो सारों के सारे जितनी भी उनकी एनाटमी है तो सिर्फ साइज़ का फ़र्क आया और बाकी सेम एनाटमी है, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस भी नहीं होते। कोई नई डिस्कवरीज वगैरह जो है वो भी तकरीबन निग्लिजिबल है, ठीक है। अगर कुछ मॉलिक्यूलर लेवल, हिस्टोलॉजिकल लेवल पे कोई कुछ डिस्कवर होता है तो वो अलग बात है। बाकी जो ग्रॉस एनाटमी है वो सेम के सेम है, ठीक है। अच्छा, ईद की छुट्टियां जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 23, 24, 25 एंड 26 ये 6 छुट्टियां हैं। अभी आ, हमारा कॉलेज जो है वो भी गवर्नमेंट को फॉलो करेगा तो उनकी हिदायत पे ये 23 से लेकर 26 तक शायद छुट्टियां मिल जाए इंशाल्लाह। خلاص بايز بقشطة نشتي دا مادة زيادة عادي نشتي administration معلومات كل واحد ياخذ زيادة قطعي حاجي كفرض students पूरे شيء چې موږ خپل lecture start کوو. نن lecture چې کوم نه دي زیات بور نه دی، interesting lecture دی او slides یې وایي خو خیر تاسو ان شاء الله انجوای کوئ، څه ګرانډ به پکې څه نه وي. सी आर किधर है? हनीफ क्लास स्टार्ट कर लें? अच्छा जी,
Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is common fractures of the lower limb, right? It is one of the interesting topics in the lower limb. So, as you already know, you have already been taught the fractures of the upper limb. So, you must be knowing what is meant by fracture. Fracture means any breach in the continuity of the bone, right? पश्तो में जिस तरह कहते हैं पुख्तो के सरोई चुरलट माते लास का ना क्रैक थे ठीक था चुरलट मात और क्रैक ठीक था दो अलग अल्फाज वो यूज करते हैं ठीक है दोनों को फ्रैक्चर कहते हैं ठीक है अगर सिर्फ उसमें छोटा सा क्रैक वगैरह आया हुआ है ठीक है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ तब भी वो फ्रैक्चर ही है ठीक है तब भी वो फ्रैक्चर है लेकिन सिर्फ वो डिस्प्लेस नहीं हुआ लेकिन जैसे पश्तो में चुरलट मात कहते हैं ठीक है दैट इज फ्रैक्चर विद डिस्प्लेसमेंट ठीक है वो फ्रैक्चर भी होता है लेकिन ये जो दो सेगमेंट्स या फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं बोन के वो डिस्प्लेस भी हो जाते हैं ठीक है तो पश्तो में इस वजह से वो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है अदरवाइज बोथ आर फ्रैक्चर राइट there are two main causes of fracture right that may be either due to trauma or due to some pathology by pathology we means different sorts of diseases which may cause fracture right trauma may be due to a fall from a certain height or on the ground while walking or running, etc. It may be due to road traffic accident, either pedestrian accident or someone may be riding or he must be driving a vehicle, right? Then high velocity impact, either from an iron rod or from a bullet or from a stone, etc. All these are different sorts of trauma, and trauma it breaks the bone, right? It causes the bone to fracture due to the high energy that is transmitted, right, to the bone. Then the other causes of bones that are due to diseases, right? Different sorts of diseases, most common of which are the cancers, the osteoporosis, and the infections. Okay, so what uh, why we gave the specific heading, separate heading to the pathological causes, because the pathology or any disease, it weakens the bone, right? Bone is a strong tissue. It is weakened by different sorts of diseases. There may be cancer, there may be osteoporosis or weakening of the bone, or there may be infection, right? And then just a small energy, it is enough for breaking the bone, okay? Clinically, the patient with who has suffered a fracture of the bone, he will present with pain localized at the site of fracture. There will be swelling due to the collection of the blood hematoma at the fracture site, or due to the surrounding tissue edema, right? There will be instability. As you know, the bone is the main support giving structure, right? It is the skeletal framework of our body. So if a bone is broken, then the support, the part to which it is given support, that will be unstable, right? Then there will be deformity, right? Then joints as fulcrum across which uh, the muscles, the immobility or decreased mobility, right? Then there will be crepitations that can be felt or even heard. Okay. By crepitations, we means the crackling sounds that are produced by the rubbing of the two ends of the bone. Okay. And sometimes when he has broken a bone, uh, like cancer, right? So effect on the whole of the body as well as the fracture, right? The fracture is diagnosed by the clinical findings that are we
summarize form plain red, we name them as X-rays, right? Initially, X-rays is performed, and in some cases, CT scan is also सर जी आवाज कट used. की Okay. हाँ जी, वो बस clear है? हेलो 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 सर जी द क्लिनिकल سرو دا بيو سر جي आवाज ही कट की दो हाँ जी, वो आवाज क्लियर है? सर जी तस वो से आवाज कट की हेलो सर हेलो हाँ जी, आवाज क्लियर है? आवाज कट की जी तस सर नेट मसला हुई दे सिग्नल से मसला की हाँ जी सही। The sound which is produced when the two broken and deformity is you must be knowing it from your knowledge. When it is G form, the form is not normal. Okay. अच्छा जी. Coming towards the treatment of the bone fracture, right? अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, as far as the treatment of fracture of the bone is concerned, two terms are there: the reduction followed by excision. Okay, by reduction we mean that are gone away from one another, replacing them to bone के दो सिरे जो अलग वापस लाना. ठीक है. हेलो वो सुनो निश्चित सर जी आवाज की मसला सर जी आवाज बिल्कुल कट की خلاص بس हेलो रिवर्स बराबर दो प्लीज सर रिपीट द प्रीवियस टू स्लाइड
हेलो हेलो जमा आवाज सही कर दी स्लाइड प्रेजेंटेशन Pergunta uma é o chat antes do globo. हाँ जी अभी आवाज कह रहे हैं ठीक है जी चले जी जिंदाबाद अच्छा जी अच्छा तो हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर्स ऑफ द लोअर लिम्ब ठीक है इसके काज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं या तो ये ट्रामा की वजह से होगा या किसी पैथोलॉजी की वजह से ठीक है अच्छा उसके बाद क्लिनिकली पेशेंट प्रेजेंट करेगा पेन स्वेलिंग इंस्टेबिलिटी डिफॉर्मिटी इमोबिलिटी क्रेपिटेशंस और साइन सिम्टम्स ऑफ द अंडरलाइंग डिजीज ओके अच्छा इमोबिलिटी मतलब जो हम नॉर्मल हरकत देते हैं हाथ को ठीक है हाथ पाँव को ठीक है तो वो नॉर्मली हम they are because of the action of the muscles that are acting across the joints ठीक है अगर आप बाइसेप मसल्स को देखें तो बाइसेप मसल किस तरह एक्शन करेगा that is the bulk of the bicep it is present at the humerus bone right but its tendons are inserted below at the radius okay वो रेडियस पे इंसर्ट हैं और जब वो एक्शन करते हैं कांटेक्ट होते हैं तो रेडियस को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं ठीक है लेकिन सपोज अगर ह्यूमरस जो है वो ब्रोकन है ह्यूमरस बोन जो है वो ब्रोकन है तो फिर फल्क्रम जो है दैट वाज इनिशियली एट द एल्बो दिस fulcrum is now shifted to somewhere else okay at the site of fracture so there will be either no movement or decreased movement okay then by crepitation we mean the crackling sounds that are produced by the rubbing of the two ends of the broken bone okay we diagnose the fracture clinically by the signs symptoms they are already we discussed in the previous slide and through radiography okay initially we perform plain radiograph in other words it is known as x-ray okay x-ray में हम क्या देखते हैं हमें जो बोन की जो कंटिन्यूटी थी ठीक है नॉर्मल कंटिन्यूस था ठीक है तो वो कंटिन्यूटी वो ब्रीच हो गई ठीक है here you can see this is the one end okay and this is the other end okay ये फीमर बोन है ठीक है तो फीमर बोन का ये यहाँ पर ये क्रैक हुआ है ये फ्रैक्चर हुआ ठीक है this is broken okay one end is here and the other end is here lower down right this is overlap of the bone right okay अच्छा फिर ट्रीटमेंट में दो अल्फाज हैं
रिडक्शन और फिक्सेशन, ठीक है। रिडक्शन हम कैसे कहते हैं, टू place the broken ends of the bone back onto its position, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ठीक है, ये दो सिरे जो हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसे जब ट्रीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम रिड्यूस करेंगे। बाय रिडक्शन वी मीन टू प्लेस दिस एंड ऑन दिस, ओके। यहाँ पर वापस लाना और इस तरह स्ट्रेट रखना, ठीक है। वापस इसको अपनी जगह पर लाना, इसे कहते हैं रिडक्शन। वेरी क्लोज। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। रिड्यूस द टू एंड्स ऑफ द फोन। वी हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस, आइदर वी रिड्यूस इट थ्रू ओपन मेथड। ओपनिंग हम किस तरह करते हैं, हम सर्जरी करते हैं और सर्जरी में हम कट देते हैं स्किन, सॉफ्ट टिश्यू और जो अंडरलाइंग मसल्स है उनको कट करके बोन को एक्सपोज कर लेते हैं, और जब बोन एक्सपोज हो जाए तो फिर उसे रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बोन रिड्यूस हो जाए तो चूंकि द बोन इज ऑलरेडी ब्रोकन, सो इट नीड्स टू बी फिक्स्ड राइट अप टू द टाइम ऑफ कंप्लीट हीलिंग। बोन जब तक कंप्लीटली हील न हो जाए तो ये वापस जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, कोई सपोर्ट देते हैं और उस सपोर्ट को हम फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। फिक्सेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, कास्ट फिक्सेशन, एक्सटर्नल फिक्सेशन है और इंटरनल फिक्सेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं दिस इज द क्लोज्ड रिडक्शन ऑफ द बोन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द रेडियस व्हिच इज ब्रोकन, the two broken ends that are displaced away from one another, okay. And this guy, this is what he is doing, he is doing some maneuver to gain the continuity of the bone once again, right. He is reducing the bone, okay. This is the reduced form of the fracture bone, okay. अच्छा, तो बोन को रिड्यूस कर लिया आपने, ये क्लोज रिडक्शन था, उसमें हमने कोई कट वगैरह नहीं किया था स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू और अंडरलाइन सॉफ्ट टिश्यू को, ठीक है। और ये ओपन रिडक्शन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कट लगा के बोन को एक्सपोज करते हैं और फिर जो दो या ज्यादा ब्रोकन एंड्स हैं उसको हम अंडर डायरेक्ट विजन हम उसे फिर रिड्यूस करते हैं, ठीक है। जो दो ब्रोकन एंड्स हैं उनको इकट्ठे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिक्सेशन है। फिक्सेशन का मतलब है सपोर्ट देना। बोन जब तक हील ना हो जाए उसे सपोर्ट दें। तो सपोर्ट देने के मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो हम प्लास्टर अप्लाई करते हैं, कास्ट फिक्सेशन, कास्ट कालब को कहते हैं, ठीक है। कास्ट फिक्सेशन, वी अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ कास्ट एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कास्ट which is used is the plaster of Paris, right, POP. This on your right side of the screen, this is the external fixator, okay. Inside seems like many of the bones they are broken, while this is the external framework which is giving support to the bones, okay. अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये मुख्तलिफ इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर द इंटरनल फिक्सेशन, ओके। जो सबसे पहले वाला है, दिस इज द प्लेट, ओके। ये प्लेट है, मुख्तलिफ प्लेट्स हमारे पास होते हैं। उसके बाद बोन के अंदर जो कैविटी है जिसे मेडुलरी कैविटी कहा जाता है, उसमें रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिवाइस होते हैं। इंट्रामेडुलरी नेल, ये B नंबर, ये इंट्रामेडुलरी नेल है। उसके बाद हमारे पास स्क्रूज हैं, वायर्स हैं, DK वायर्स, ठीक है। और आखिर में हमारे पास स्क्रूज हैं, ठीक है। तो ये काफी सारे अक़साम के इम्प्लांट्स हैं जो कि इंटरनल फिक्सेशन में काम आता है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है बोन की, फ्रैक्चर की, हम पहले रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, या ओपन रिडक्शन है और या क्लोज रिडक्शन है। उसके बाद हम फिक्स करते हैं। तो फिक्सेशन के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, या तो हम एक्सटर्नली फिक्स करते हैं कास्ट फिक्सेशन के जरिए, या एक्सटर्नल फिक्सेटर के जरिए, और या इंटरनली हम फिक्सेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई इम्प्लांट वगैरह करते हैं। ये तो खैर जनरल ओवरव्यू था। अब ये आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, ठीक है, आपके एनाटॉमी की तरफ। लोअर लिम्ब, इसके फ्रैक्चर हम मुख्तलिफ तरीके से तकसीम कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका है, आप चूंकि ऑलरेडी रीजनल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है,
तो हम रीजन वाइज इसको रीजन वाइज या बोन वाइज तकसीम करते हैं, ठीक है। जो बोन है उसका फ्रैक्चर टाइप, ठीक है। जैसा कि फीमर है तो फीमर के फ्रैक्चर, उसके बाद टिबिया एंड फिबुला, फ्रैक्चर्स ऑफ द टिबिया एंड फिबुला, फ्रैक्चर्स ऑफ द पेटिला, फ्रैक्चर्स ऑफ द एंकल एंड द टार्सल्स एंड द मेटाटार्सल्स। ओके, सबसे पहले आते हैं फीमोरल फ्रैक्चर की तरफ। अगर अभी तक आप में से कोई सोया हुआ था तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी से हमारा सही टॉपिक जो है वो शुरू होता है, तो काइंडली आंखों को मल के मुंह हाथ धो के अभी से बेहतर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो फीमोरल फ्रैक्चर इसको हम फिर क्लासिफाई करते हैं। आपको चूंकि ऑलरेडी पता है, फीमर इट इज अ लॉन्ग बोन, इट हैज अपर एंड और द प्रॉक्सिमल एंड, then it has lower end and a middle shaft. Okay, so the fractures of the femur can also be divided into three categories: fracture of the proximal end, fracture of the shaft of the femur, and fracture of the lower end of the femur. Now, first of all, let's discuss the fractures of the proximal end of the femur. The proximal end of the femur is again divided into different regions. Okay, the first region, which is lying within the capsule of the hip joint. This is the intracapsular region. Then the region which is occupied by the greater and the lesser trochanter. This is the trochanteric region. Okay, trochanteric region. The third region, which is lying below the lesser trochanter, up to 5 centimeter, right? Up to 5 centimeter below the lesser trochanter. This is known as the subtrochanteric region, right? अच्छा, तो कैप्सुलर इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में कैप्सूल के अंदर क्या है? कैप्सूल की मिसाल ऐसी है जैसे कोई मोटरसाइकिल पे सवार होके हेलमेट पहनता है, ठीक है। मोटरसाइकिल तो खैर उसका हेलमेट तो ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन वो अर्तुगरुल ड्रामा जो है उसमें जब वो सलीबी होते हैं और वो हेलमेट पहनते हैं, तो वो किस तरह के हेलमेट होते हैं? वो सर को भी ढांपते हैं और गर्दन को भी ढांपते हैं, ठीक है, ताकि सर और गर्दन दोनों तलवार वगैरह से उसके वार से महफूज हो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हेलमेट है, ये जो कैप्सूल है, दिस कैप्सूल इट इज इनक्लोजिंग द हेड एज वेल एज द नेक ऑफ द फीमर। ओके, सो द इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर they can be divided into different types. First one, the fractures of the head of the femur, they are known as the capital fracture. Then the fractures of the neck of the femur, they are the neck of the femur fracture. Okay, neck of the femur में again there are 3 types. उसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ फीमर है जिसे कहते हैं कैपिटल फ्रैक्चर्स, और उसके बाद NOF नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्स है, ठीक है। नेक ऑफ फीमर में फिर अगर प्रॉक्सिमल है तो सबकैपिटल कहते हैं, अगर बिल्कुल मिड पे है तो ट्रांस सर्वाइकल कहते हैं, और अगर बिल्कुल निक के बेस पे है तो उसे बेसी सर्वाइकल कहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक आप ये जान लें कि फ्रैक्चर्स ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर, ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। इंट्रा कैप्सुलर 2 मेन टाइप्स को, सबसे पहला है इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर और दूसरा है एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। इंट्राकैप्सुलर वो फ्रैक्चर जो कि कैप्सूल के अंदर वाले हिस्से बोन के वहां पर होता है, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर, दीज आर द फ्रैक्चर्स व्हिच आर present in the part of the bone that is lying outside of the capsule of the hip joint. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is the head region, this is the neck region, and this is the trochanteric region. Okay, अच्छा, फिर ये नेक ऑफ फीमर है, ठीक है। नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर हमने तकसीम किए 3 अक़साम में, दी सब कैपिटल, ये ट्रांस सर्वाइकल एंड दी बेसी सर्वाइकल, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अगर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर आपको याद हो तो वो भी काफी। अगर नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर भी याद ना हो ना, तो सिर्फ इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर याद हो तो भी बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा जी, अभी आपके काम की बात क्या है? नेक ऑफ फीमर, आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर फ्रैक्चर पे आएगा तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि
हेड ऑफ फीमर फ्रैक्चर यानी कि फीमर फ्रैक्चर, उस पर क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसमें एवास्कुलर नेक्रोसिस क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपसे कोई क्लासिफिकेशन इतनी एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कम से कम एनाटॉमी की नॉलेज हो, ब्लड सप्लाई की नॉलेज हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास जो हेड एंड नेक ऑफ द फीमर है, इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? इट इज फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, ओके। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, this is the these are the branches of the femoral artery, the lateral circumflex femoral artery and the medial circumflex femoral artery. Then these are the branches of the lateral and medial circumflex femoral artery, okay. While there is an artery which is the branching from the obturator artery, and it goes inside of the ligamentum teres and enters into the head of the femur, okay. अच्छा, तो हमारे पास हेड ऑफ फीमर जो है, इस इसको दो मुख्तलिफ सोर्सेज से ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमर हेड की तरफ। एवास्कुलर नेक्रोसिस, वास्कुलर कहते हैं ब्लड सप्लाई को, ठीक है। एवास्कुलर जब ब्लड सप्लाई ना हो, और नेक्रोसिस कहते हैं टिश्यू डेथ को, ठीक है। बोन चूंकि टिश्यू है, दिस इज लिविंग टिश्यू, ओके। तो बोन की नेक्रोसिस यानी डेथ होती है ड्यू टू डिक्रीज्ड वास्कुलरिटी, ठीक है। फेमोरल हेड की हेड की न्यूक्रोसिस जो है वो ड्यू टू डिक्रीज वास्कुलरिटी, वो क्यों होती है, वजह क्या है? इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर। हमारे पास अगर सरकलम हो जाए, ठीक है, सरकलम हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास हेड को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? हमारे पास जितनी भी ब्लड सप्लाई है, ठीक है, तो वो कहाँ से आती है? दिस इज फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्सेज। एक है ऑब्चुरेटर आर्टरी, ऑब्चुरेटर आर्टरी के ब्रांच से, और दूसरा है फीमोरल आर्टरी के ब्रांचेस की तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सर कलम कर लें तो फिर क्या होगा? हमारे पास वाहिद सोर्स कौन सी रह जाती है? ऑब्चुरेटर आर्टरी की। लेकिन चले देखते हैं कि ये ऑब्चुरेटर आर्टरी कितने काम आती है, ठीक है। यहाँ पर हम थ्योरी में पढ़ते हैं, इन एडल्ट्स the head of femur, it is supplied by artery of the ligamentum teres, ठीक है। ये जो ब्रांच है इसे कहते हैं, this is the branch of the obturator artery and it goes within the ligamentum teres, तो इसे कहते हैं artery of the ligamentum teres। it later on obliterates in elderly, ठीक है। जिस तरह जैसे ही इंसान की उम्र जो है वो बढ़ती जाती है, बुढ़ापे, तो बुढ़ापा करीब आता जाता है, तो फिर क्या होता है? ये आर्टरी जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। तो क्या होगा? इसने दगा दे दिया, ठीक है, गद्दारी कर दी, ठीक है, तो फिर क्या होगा? एंड द एनास्टोमोसिस, अच्छा, हमारे पास हेड ऑफ फीमर की सप्लाई कहाँ से है? नंबर 1 फ्रॉम द ऑब्चुरेटर artery, and number 2 from the anastomotic branches of the lateral and medial circumflex femoral arteries, ठीक है। Neck of femur fracture results in interference or complete obliteration of the blood supply of the femur head, resulting in avascular necrosis। होता क्या है कि अगर सपोज एक बंदा है, उसकी उम्र 50-60 साल है, ठीक है, और खुदा ना खास्ता वो गिर गया और उसकी नेक ऑफ फीमर जो है वो फ्रैक्चर हो गई, ठीक है, तो फिर क्या होगा? इसको जवानी में कहाँ से ब्लड सप्लाई था? दो जगहों से था, एक थ्रू दी ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर आर्टरी एंड नंबर 2 थ्रू दी एनास्टोमोटिक ब्रांचेस ऑफ द लेटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरीज, ठीक है। तो अगर उसका नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर तो चांसेस हैं कि ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है ये उसे बचाएगी, ठीक है, ये इसे, क्योंकि ब्लड सप्लाई वो जहरी है। लेकिन एल्डरली में क्या होगा? एल्डरली में ये होगा कि जब नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो ऑब्चुरेटर आर्टरी वो तो ऑलरेडी ऑब्लिटरेट हो गई है, ठीक है, और जो ब्रांचेस हैं लेटरल मिडिल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की, वहां पर तो ऑलरेडी बोन फ्रैक्चर हो गया है। तो जब फ्रैक्चर हो गया तो इस साइड से भी ब्लड सप्लाई बंद हो गई, तो जब दोनों साइड से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर क्या होगा? एवास्कुलर नेक्रोसिस होगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने समझना होगा, ठीक है। शायद कोई मुश्किल को नहीं, कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई इशू तो नहीं समझ आ गई? एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड की। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
अच्छा, तो हमने इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर जो है वो तो डिस्कस कर लिए। इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर में मसला क्या है कि हमारे पास एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है फीमर हेड की। जितने भी इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर हैं, ख्वा वो फीमर हेड के फ्रैक्चर हो यानी कैपिटल फ्रैक्चर हो, ख्वा वो सब कैपिटल हो, मिड सर्वाइकल हो, बेस सर्वाइकल हो, जितने भी हो सारों के सारे ये इनकी कॉम्प्लिकेशन क्या है टॉप मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड। उसके बाद हम बढ़ते हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर की तरफ, जिसमें दो अकसाम है, इंट्राट्रोकेंटेरिक एंड सब ट्रोकेंटेरिक। ठीक है, ये इलाका जो गोल्डन या येलो कलर में दिया हुआ है, ठीक है, this is the area occupied by the two trochanters, the greater and the lesser trochanters of the femur. If fracture occurs at this area, they will be named as intratrochanteric fracture, while if the fracture they occur at any point 5 centimeters below the lesser trochanter in this blue area, okay, these will be named as subtrochanteric. Okay, and these two fractures they are categorized under the heading of extracapsular fracture. Okay, there is no issue like avascular necrosis associated with the extracapsular fracture, right? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि multiple branches हैं which are supplying the parts of the these parts of the femoral head. Okay, अच्छा, फिर एक्स्ट्राकैप्सुलर के बाद हमारे पास शेफ्ट आता है, और शेफ्ट के बाद निचला जो सिरा है डिस्टल एंड, उसमें फिर दो मजीद अक़साम है, वो इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, हियर यू कैन सी द इंट्राकैप्सुलर सबकैपिटल फ्रैक्चर, राइट? यहाँ पर ये आपको फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही है, दिस इज द सबकैपिटल फ्रैक्चर ऑफ द फीमर। This one, this is the greater trochanter, this is the lesser trochanter, and you can see this is the fracture line. You can appreciate the fracture line at the level of the trochanters. So it is the intertrochanteric fracture. While in this fracture, this is the fracture, right? These two fragments you can appreciate the fracture line. This is lying just below the lesser trochanter. Okay, so this is the subtrochanteric fracture. अच्छा, अभी एक और इम्पॉर्टेंट यानी आपके काम की एक और बात है। एक काम की बात आपकी क्या थी कि जितने भी हमारे पास इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर है उनमें क्या होता है, उनमें एवास्कुलर नेक्रोसिस का खतरा होता है। दूसरे काम की बात क्या है, हमारे पास जितने भी नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर है या ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पेशेंट की प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, पेन स्वेलिंग वगैरह वो अपनी जगह, लेकिन जो पाँव होगा उसकी पोजीशन आप इसको अगर आप देखें, this is shortened, okay, one heel is here, the other one is here, right? This is shortened and it is externally rotated, right? यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is externally rotated, shortened and externally rotated. Why it is shortened? It is because of the pull of the muscles, right? These muscles, the rectus femoris muscle, adductor magnus, and the hamstring muscles, okay? Rectus femoris on the front, adductor magnus on the medial side, and hamstring muscles on the posterior side. They are pulling the lower fragment, the lower ends, okay, above, superiorly, right? So the leg will appear shorter. The affected leg, it will appear as shorter than the other one. अच्छा, ये उसके बाद externally rotate क्यों होती है? This is because of these muscles, okay? The हमारे पास gluteus maximus muscle है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास जिमिलस सुपीरियर, जिमिलस इंफीरियर मसल्स है, क्वाड्रिस फेमोरस मसल है। तो इन मसल्स के बदौलत जो है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दीज मसल्स द लेग इज एक्सटर्नली रोटेटेड, ठीक है। अच्छा, फिर बढ़ते हैं शाफ्ट ऑफ फीमर फ्रैक्चर्स की तरफ, ठीक है। शाफ्ट ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर जो था, इसके बारे में ये याद रखते हैं, this is more common in elderly patients, okay? In elderly people, the neck of femur fracture or the head of femur fracture, they are more common. While the shaft of femur, which is relatively more stronger, it is more common in younger, right? And this fracture occurs due to high velocity, high energy trauma. It can be categorized into proximal 1/3 fracture, middle 1/3, and the distal 1/3 fracture. What we will observe clinically, 2 points are important. Number one, there will be considerable amount of shortening because of the pull of the muscles on the 2 different segments. Also, there will be considerable amount of blood loss.
it is said that approximately 1500 ml to 2 liter of blood is lost because of the fracture of femur. Okay, हमारे पास अगर फीमर फ्रैक्चर हो तो तकरीबन 1500 ml ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर लॉस हो जाता है? ओपन नहीं होता, यहाँ पर कोई जख्म वगैरह नहीं होता, लेकिन जो थाई के अंदर जो रीजन है, ठीक है, इस बोन से ब्लड लॉस होकर थाई के अंदर जमा हो जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, अभी ये भी आपकी एनाटॉमी से ली गई एक पिक्चर है। Na avascular necrosis ci kan apa shaf femur की की हमजा। अच्छा जी, अभी जब शेफ्ट ऑफ फीमर की फ्रैक्चर हो तो फिर क्या होगा? हमारे पास शॉर्टनिंग होगी। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ शॉर्टनिंग होगी। व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ दीज मसल। ठीक है, ये एडाक्टोरम मैग्नस मसल है। एडाक्टोरम मैग्नस क्या करता है? इनके एक्शन तो आपको ऑलरेडी वो मालूम होंगे। ये हमारे पास एबडक्शन करता है और इंटरनल रोटेशन करता है, एडक्शन करता है और फ्लेक्शन करता है, और उसके साथ साथ इंटरनल रोटेशन थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद हैमस्ट्रिंग मसल्स और क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल, these pull the bone upward. Okay, the gluteus maximus and the neighboring muscles, they cause the internal rotation of the proximal fragment, while the gemini muscles, the gemellus superior inferior muscles, they contract the greater trochanter upward. ठीक है, अच्छा तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये लोअर अगर proximal one third की फ्रैक्चर हो तो फिर क्या होगा? हमारे पास शॉर्टनिंग होगी, लेकिन शॉर्टनिंग के साथ साथ इंटरनल रोटेशन होगी। ठीक है, उसके बाद अगर मिडिल वन थर्ड पे हो तो फिर हमारे पास भी शॉर्टनिंग होगी। ठीक है, और अगर लोअर वन थर्ड में हमारे पास फ्रैक्चर हो जाए तो फिर क्या होगा? ये जो लोअर सेगमेंट है, it is pulled downward by the gastrocnemius muscle. ठीक है, gastrocnemius two heads, they are attached to the lateral and medial femoral condyles. They will pulling the lower end. Okay, and the sharp lower end, it presses against the popliteal artery, which is the sole vascular supply to the leg and the foot. Okay, अच्छा तो हमारे पास इसकी कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन की वजह से इस्कीमिया हो सकता है, पार्शियल इस्कीमिया। और अगर हमारे पास ये एज ब्रोकन एज जो कि शार्प होता है, अगर ये डैमेज कर ले पॉप्यूटल आर्टरी को तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास नीचे जो है ब्लड सप्लाई वो मुकम्मल तौर पर रुक जाएगी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द हार्श कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द फ्रैक्चर ऑफ द लोअर एंड। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं इस एक्सरे में हमने तो ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास जो शेफ्ट ऑफ फीमर के फ्रैक्चर होंगे दैट आर मोस्टली ड्यू टू दी हाई वेलोसिटी ट्रॉमा, लेकिन अक्सर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हाइपोटेंस एरियाज आप देख सकते हैं। दीज हाइपोटेंस एरिया दे आर रिप्रेजेंटिंग आइदर इन्फेक्शन और ट्यूमर। ओके, तो इस वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वाक़ होते हैं। अच्छा, उसके बाद लोअर एंड की वो क्लासिफिकेशन है, तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये बात ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली कि gastrocnemius muscle, this pulls the lower end of the femur and it presses against the popliteal artery and the nerves. Okay, and if it is sharp enough and pressing enough, it can perforate or completely translocate the artery. Okay, अच्छा जी, femoral fracture में जो अहम बातें थी, शॉर्टनिंग होती है, लेटरल रोटेशन होती है, और नेक ऑफ फीमर के अगर फ्रैक्चर हो तो फिर क्या होगी? फिर एवास्कुलर नेक्रोसिस वाक़या होगी। और अगर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो, अगर यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास पॉप्यूलर आर्टरी को डैमेज करने का खतरा होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बढ़ते हैं पेटेलर फ्रैक्चर की तरफ। पेटेलर फ्रैक्चर, पेटेलर, दिस इज द पेटेलर बोन, दीज आर
some of the common fractures as the bone is not superficial, right, next to the skin. This results from direct impact, either from hazard or from road traffic accident. Several fragments are formed, but they are often they are in place. They are not क्या कहते हैं वो तितर बितर नहीं होते, ठीक है, यहाँ पर पड़े रहते हैं, आसपास ही में पड़े रहते हैं, क्योंकि as you know this is sesamoid bone, largest sesamoid bone lying within the quadriceps tendon. So these quadriceps tendon they keep these fragments in place. अच्छा, उसके बाद हम बढ़ते हैं टिबियोफिबुलर फ्रैक्चर की तरफ। टिबियोफिबुलर फ्रैक्चर में या तो एक बोन फ्रैक्चर होता है या दोनों बोन फ्रैक्चर होते हैं, और दोनों में हम प्रोक्सिमल एंड फ्रैक्चर, शाफ्ट फ्रैक्चर और डिस्टल एंड फ्रैक्चर वो हम क्लासिफाई इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द टिबिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। Upper and lower ends of the tibia, both of them are involved in the formation of the joint. Upper end of the tibia, it is involved in the formation of the knee joint, while the lower end of the tibia, it is involved in the formation of the ankle joint. अगर इसके बरअक्स अगर हम फिबुला की बात करें तो फिबुला की अपर एंड जो है वो हमारे पास नी जॉइंट फॉर्मेशन में कोई उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, जो वेट बियरिंग जॉइंट है। लेकिन जो लोअर एंड है इट इज associated with the ankle joint, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं this is the knee joint. Knee joint में tibia का रोल है, ठीक है। Tibia is forming the knee joint, but fibula has got no role in the knee joint formation. While if you see to the anterior posterior view of the radiograph of the ankle joint, you can see that this is the lower end of the tibia and this is the lower end of the fibula. Both of these bones they are contributing to the ankle joint. अच्छा, तो ये बताना क्यों जरूरी था, अगर हमारे पास अपर एंड या शाफ्ट ऑफ द फिबुला उसकी फ्रैक्चर हो जाए तो फिर क्या होगा, हमारे पास कोई इंस्टेबिलिटी वगैरह नहीं आएगी, हम उसे अक्सर एज सच छोड़ देते हैं, उसे ट्रीट भी नहीं करते। लेकिन अगर हमारे पास लोअर एंड ऑफ द टिबिया या फिबुला की फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों को करेक्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। زميلي ومالجرا وكان اخذ كريبت كارتا وشو وصف الفيزيولوجي ديبارتمنت كده او جيل او تشميد او در فوق مالجرا زمو غټه ډاکټر عظمت سے تاسو ولې پیژنې موږ په کرکټ کې بس کرکټ کې داغه اجازه کومه شو پای کوم ځای ماته شو د ټي وی او فیبولا باندې ماته شو او د ځای ماته شو نو کله چې هغه د ستل دراړو هغه سرجری وکړو نو سرجری کې شروع کو په ټي وی کې ته انټراميډولري نیل کې خو دا ول ریپیر کړه او فیبولا کوم چې په دې کې ماته هغه هم دا شانته پرې خو ولې پرې خو ځکه چې فیبولا چې کوم نه هغه د لوور اند اف جوینټ فارمیشن کې دا هیرو شته او اپر اند او شافت دا غي سچ سټیبিলিټي ورکولینګ رول نشته، چې شو نه هغه ریپیر نکړه ورسره د وخت سره بیا په خپل باندې چې نه جوړ شي، چې شو دي صرف درې بار موږ تاسو ته خبره یادې او لښانتي رايح شيخه. Actually, tibia or fibula fracture. These are very much common fracture. If one of them is fractured, the other one will act as splint. Okay? Tibia or fibula. That's not palke जोड़ेगा ना, palke फिर नहीं करना. Palke बिल्कुल सेल में होते हैं और बिल्कुल द पोसे की नखका तक होते हैं. नीचे संग वाला सब बेट रखी वाला बाल रखी करना, नो डायरेक्ट मारती है. अच्छा, अभी काम की बात क्या है, if one of them is fractured, the other one will act as a splint for it, ठीक है। splint कोई सपोर्टिव चीज जो है उसे कहते हैं, ठीक है, कोई सपोर्ट को देता है, बोन को चीज सपोर्ट देती है। Here you can see in this diagram, in this X-ray, the tibia is fractured, but as the fibula it is not fractured, it is normal, so it has supported the tibia. Okay. अच्छा जी, उसके बरअक्स अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टिबिया और फिबुला दोनों फ्रैक्चर है, तो स्प्लिंट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कोई बोन मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा,
प्रॉक्सिमल टिबियल फ्रैक्चर या जिसे कहते हैं टिबियल कॉन्डाइल फ्रैक्चर या टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर, ये मुख्तलिफ अक़साम है इसके, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि चूँकि टिबिया का अपर एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी जॉइंट। सो अगर हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड या टिबियल प्लेटो, ये टिबियल प्लेटो है, ठीक है, ये टिबियल प्लेटो है, दिस स्लोपिंग, दिस इज द टिबियल, दीज आर द टिबियल प्लेटोस, राइट? So if the tibial plateau it is fractured, then the knee joint it will be unstable. Okay. Acha. It is common in young occurs due to high velocity trauma. Bumper injuries from the automobile. They lead to impact on the lateral sides of the knee joint, and they are also often associated with the damage to the medial collateral ligament due to the post abduction. और अगर फर्ज कदा बाहर ना दे साइड ना बम्पर राशि का ना दे साइड ना बम्पर राशि ने सब की को बता दी कि फ्रैक्चर की बल दाब abduct शी, this leg will be abducted forcefully, so the ligament which is present on the medial side of the knee joint, the medial collateral ligament, it will be thrown away due to excess stress. Okay. अच्छा, अब ये टिबियल फ्रैक्चर, टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर के बारे में एक और बात जानना जरूरी है, as it is lying just below the skin. So it is very much common that if tibia is fractured, the bone will come out and it will be open fracture. Okay. अच्छा, तीसरी अहम बात टिबियल फ्रैक्चर के मुताबिक, अगर फ्रैक्चर हमारे पास डिस्टल 1/3 में है तो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसे कहते हैं नॉन यूनियन, ठीक है, नॉन यूनियन या डिलेड यूनियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं द न्यूटन आर्टरी इट इज entering the bone at a higher level, right? This is the Newton artery for supply of the whole of the tibia. It is entering into the bone at a higher level. So if fracture occurs at the lower 1/3, right? So the Newton artery they will be cut down. If the blood supply is cut down, so there will be no supply for the repair of the bone, and it has got a complication of non-union or malunion. Okay. उसके बाद fractures which are associated with the ankle, fracture dislocations of the ankle. They are also some of the common fractures caused by forced external rotation of the foot, or poor eversion or poor inversion. ठीक है, forced external rotation में क्या होता है? forced external rotation, आप अगर पाँव को बाएं की तरफ घुमाएं, ठीक है, फोर्सफुली अगर पंजे लेटरली या एक्सटर्नली वो रोटेट हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? हमारे पास ये टेलस जो है इट विल बी प्रेसिंग अगेंस्ट द लोअर एंड ऑफ द फिबुला एंड इट विल कॉज द लेटरल मेलियोलस ऑफ द फिबुला टू फ्रैक्चर इन अ स्पाइरल मैनर, ठीक है, तो हमारे पास स्पाइरल मैनर में फ्रैक्चर वाक़ हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट यूर, हमारा ये बात जो है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ये जान लें कि एंकल में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, एक है मीडियल मेलियोलस और दूसरा है लेटरल मेलियोलस। द खबर पे किस देखा, एक है लेटरल मेलियोलस, दूसरा है मीडियल मेलियोलस, ठीक है। अच्छा, अगर आप पाँव को फोर्सफुली एक्सटर्नली रोटेट करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे पास फिबुला फ्रैक्चर होगा। अगर इंटरनली रोटेट या इनवर्ट हो जाए पाँव तो फिर क्या होगा? फिर वहां पर इम्पैक्ट आएगा, तो मीडियल मेलियोलस जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। This is the lateral malleolus which is fractured, while this is the medial malleolus which is fractured, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आर द फ्रैक्चर्स ऑफ द टेलस। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जान लें कि टेलस में बॉडी है, हेड है और नेक है। दिस इज द बॉडी ऑफ द टेलस, दिस इज द हेड ऑफ द टेलस, व्हाइल दिस इज द नेक ऑफ द टेलस। अगर फोर्सफुली पाँव को डोर्सिफ्लेक्स करेंगे, यानी ऊपर की तरफ जो टोज है उसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, तो फिर क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर फोर्स पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फोर्स पड़ेगा और उसकी वजह से नेक ऑफ दी टेलस जो है उसके फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। दूसरा हमारे पास बॉडी ऑफ द टेलस है। बॉडी क्यों फ्रैक्चर होगी? अगर कोई बंदा है वो किसी ऊंची जगह से वो जंप लगाते हैं, ठीक है, तो कहाँ पर इम्पैक्ट होगा?
सबसे पहले यहाँ पर हील पे इम्पैक्ट होगा और यहाँ हील पे इम्पैक्ट होगा the earth upon which the person has landed. It will be pressing against the heel of the person, and from above the weight of the person, it will be transmitted through these two bones of the leg. Okay, so the talus bone, which is compressed in between these two bones, it will be fractured. ठीक है, इसकी बॉडी जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगी. कैल्केनियम में भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फ्रैक्चर होते हैं. ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है. आपकी किताब में सिर्फ ये दिया गया है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर एंड है इसकी फ्रैक्चर होती है, फिर कंप्रेस फ्रैक्चर होती है. कंप्रेस क्यों होगा? ग्राउंड और टेलस के दरमियान अगर ये बोन आ जाए जंपिंग के दौरान, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ये हमारे पास कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है, तो कंप्रेस फ्रैक्चर इसके कॉमन है. मेटाटार्सल के काफी सारे फ्रैक्चर है. गोरा खबरदार रखना चाहिए फ्रैक्चर्स को दुनिया से किस्म दी पत्यूरी की तस्ता चिसवे लेकी कन नागा सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों या क्लिनिकल या जैसी एमसीक्यू दे पर कम जरूरी चीज़ों नहीं. लेकिन फर्स्ट का तस्ता उस मेटाटार्सल के हर फ्रैक्चर का फर्स्ट के उसको गोले पदे से वालेगी नो फ्रैक्चर का फर्स्ट का पगड़ हो वालेगी या पछाड़ा हो वालेगी नो फ्रैक्चर. ठीक है, दुनिया से किस्म फ्रैक्चर तो पत्यूरी की तस्ता ये उसको खास फ्रैक्चर्स वाले की तस्ता एनाटॉमी की सिर्फ अब दवेल बॉडी का ना चेहरा द पेरोनियस ब्रेविस मसल चाहिए द कम से अटैच थे. इट इज अटैच्ड टू the base of the fifth metatarsal. Okay, these are attached. This part of the bone, it is lying superficial. So if the foot of the person, it is forcefully inverted, right? Due to the forceful inversion, the fifth metatarsal bone, it will be broken, and the lower fragment, it will be pulled away by the action of the peroneus brevis muscle. ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी वाली बातें हैं. बाकी अगर आप प्रैक्टिस में देखेंगे तो प्रैक्टिस में कुछ और ही किस्सा होता है. ठीक है, लेकिन आपके लिए थ्योरी जरूरी होती है. दिस स्लाइड लास्ट स्लाइड जो इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस की वो सिर्फ दोहराते हैं. ठीक है, जो समरी थी पूरे लेक्चर की. इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर्स, these are associated with the avascular necrosis of the femoral head. ठीक है, ऑलरेडी हम पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं. इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर जो है इसकी जो खतरनाक तरीन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड. दूसरा पॉइंट, फ्रैक्चर व्हिच इज एक्सटेंडिंग इनटू द जॉइंट नीड्स टू बी परफेक्ट एनाटॉमिकली रिड्यूस्ड एज दे कैन कॉज आर्थराइटिस. अगर हमारे पास फ्रैक्चर ऐसी जगह पे है कि वो जॉइंट को भी एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, फ्रैक्चर लाइन जो है वो जॉइंट को भी एक्सटेंड हो जाए, तो जॉइंट जो है उसको उसके स्मूथ सरफेस को वापस बरकरार रखना या लाना, उसे एनाटॉमिकली परफेक्टली रिड्यूस करना जरूरी है. अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा? जॉइंट जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी. ठीक है, उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं. फ्रैक्चर्स आर एसोसिएटेड विद इंजरी टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेसल्स, नर्व्स एंड मसल्स. ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा? compression and even damage to the popliteal artery can be caused by the supracondylar femoral fracture. Supracondylar femoral fracture में हमने पढ़ा कि due to the pull by the gastrocnemius muscle, the lower end of the femur, it is pulled in backward direction, and it can press and even cut the popliteal artery. Tibial plateau fracture, these are due to impact on the lateral side of the knee and are associated with the damage to the medial collateral ligament. टिबियल प्लेटू फ्रैक्चर जो है उसमें इम्पैक्ट मोटर कार के बम्पर वगैरह से लेटरल साइड से होता है, लेकिन इसमें मिडिल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो ठीक होता है. अच्छा, फीमोरल फ्रैक्चर जो है इसमें हमारे पास कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, अप टू 1500 ml. और टिबियल शाफ्ट फ्रैक्चर हमारे पास these are often open fracture. क्यों? Because of its superficial position, it is lying just next to the skin. और आखिरी पॉइंट, द डिस्टल tibial fracture. Distal tibial fractures, they are notorious for delayed union and non-union because of the due to a fracture, the artery which is supplying the lower end, that is the neural artery, that is cut down, right?